Dr. Kalpana, what Dr. Kalpana was saying about our founder, Dr. Yudhvir Singh. He was the founder of Delhi Homeopathic Medical Association. He registered the association in 1932, making it the oldest homeopathic association in Delhi. He was the chairman of Board of Homeopathic System in Delhi, and he founded the Nehru Homeopathic Medical College and various charitable homeopathic dispensaries in Delhi. So continuing the league of webinars we conduct on second Sunday of every month since COVID, exclusively for the DHMA members. We are today here with Dr. Vandana Bharti. Welcome, ma'am. Dr. Vandana Bharti, she is holding 35 years of experience. She did her MBBS from Lady Hardinge Medical College, a reputed institute of Delhi, and has been an ex-resident at Sir Gangaram Hospital of Delhi. Currently, she practices as weight consultant and lifestyle medicine consultant after her training from Harvard Medical School of Massachusetts. She has been working as a consultant at various multi-specialty centers of Delhi, NCR, and she believes in providing holistic healthcare to her patients. Welcome, ma'am, to the platform of DHMA. Thank you for accepting our invitation. We are honored to have you here. Now, I would like to seek permission from our president, Dr. Shweta Singh, to please so that we can start the webinar of the day. Thank you, Dr. Sakshi and Dr. Kalpana, for introducing DHMA to all the audience of today. And my warm greetings to all the viewers and a very warm welcome to Dr. Vandana Bharti on behalf of the entire team of Delhi Homeopathic Medical Association. Welcome, ma'am, and thank you for accepting this our invitation to speak on obesity, a preventable and curable disease. अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आज का बहुत ही अहम टॉपिक ये माना जाएगा बिकॉज सभी लोग बहुत ही इमेज कॉन्शियस हो गए हैं एंड सभी चाहते हैं कि वो सुंदर दिखें और जो हमारा वेट है वो इस चीज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो आज हम इसके बारे में क्या सही है और क्या गलत है वो आपसे जानेंगे तो thank you so much for coming here and speaking about this topic. Thank you, ma'am. Over to you. Good evening, everyone, and thank you so much for inviting me. It is my pleasure and my privilege कि इतने esteemed audience ने बड़े-बड़े doctors जिन्होंने hospitals निकाले हैं और इतना सेटअप करा है उनके बीच में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है आज and I am thankful for the invitation. So it's a huge topic जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, but I'll just cover a few points on that and if you have any questions we can take it up anytime later. So obesity is a disease. सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि preventable भी है, curable भी है. Right? So before we start with the obesity होती क्या है? By medical definition, obesity है कि जब body में fat accumulation is in excess and because of that excess the health is being affected. Right? So अब हम measure कैसे करेंगे? Classify कैसे करेंगे obesity को? एक हम करते हैं BMI, basal metabolic index से, body mass index, sorry. So body mass index is weight in kilogram divided by height in meter square. लेकिन ये बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं है. लोग कहते हैं कि जी बॉडी मास BMI जो है 20 से 25 तक अगर रहता है तो इट इज ओके, बट 25 to 30 ओवरवेट है, 30 से ऊपर ओबीस है. तो ये एक बहुत ही कई बार इग्नोर करता है मसल मास को. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जो बहुत हार्ड लेबर करते हैं या जो बहुत ज्यादा रेसलर्स होते हैं या जिसको बोलते हैं हम जिम बहुत जाते हैं, उनका मसल मास ज्यादा होता है तो उनका जो BMI बहुत हाई होगा लेकिन उनका फैट रेशियो कम होगा. दे आर नॉट ओवरवेट, दे हैव हाई मसल, सो BMI इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दोज थिंग्स. सो वेयरएज वेस्ट हिप रेशियो एक बहुत अच्छा तरीका है. और बॉडी फैट परसेंटेज अगर हम विमेन में देखें, बॉडी फैट परसेंटेज शुड बी नॉट मोर देन 32.
और मेन में 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. दैट इज अ वेरी गुड मेजर ऑफ ओबेसिटी, राइट. और वेस्ट हिप रेशियो अगेन, अगर वेमेन में 0.86 और मेन में 1 से ज्यादा होती है तो अगेन दैट इज ओवरवेट. तो वेस्ट हाइट रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम मेजर कर सकते हैं. वी कैन मेजर ओबेसिटी एंड ग्रेड ओबेसिटी अकॉर्डिंग टू ओबेसिटी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. फॉर एग्जांपल अगर किसी का BMI 35 तक है तो टाइप 1 है, 35 to 40 है तो टाइप 2 है, 40 से ऊपर है तो टाइप 3 ऑफ ओबेसिटी. सो वी कैन क्लासिफाई ओबेसिटी. एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स? वी ऑल नो कि ओबेसिटी, ओवरवेट से हम अच्छा दिखते नहीं है, दैट इज वन. और लोग जनरली सोचते हैं कि हम वेट कम कर लें, हम अच्छा दिखें, हम फिट हो जाएं, अपने जो भी ड्रेस पहनना चाहते हैं, या शादी आ रही है तो फिट हो जाएं. बट देयर आर सो मेनी डिजीजेस आज की डेट में विच आर कनेक्टेड विद ओबेसिटी. देयर आर 66 लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनसे तो होती हैं बिकॉज ऑफ ओवरवेट. Starting from cardiovascular disease, osteoarthritis, osteoporosis, Alzheimer's, depression, cancer of the colon, prostate. 4 types of cancers are there. Metabolic syndrome, diabetes, blood pressure, dyslipidemias, मतलब cholesterol high होना. Comorbidity बढ़ जाती है because of overweight. So these are just a few to name. But sleep apnea, like you can even ABCD कर सकते हैं, for asthma, Alzheimer's, B for blood pressure, C for cancer, D for diabetes. So we can, there are so many lifestyle diseases. And the good news is कि अगर आप उसको prevent करना चाहते हैं तो अगर आप weight को कम कर लेंगे तो you can even prevent and cure such lifestyle disease. For example, give you an example. अगर pre-diabetic है कोई, 200 से कम शुगर है, 200 तक शुगर है, और प्री डायबिटिक है और ओवरवेट है, अगर वो अपना वेट कंट्रोल कर लेते हैं तो उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाती है. अगर वो वेट कंट्रोल कर लेते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो जाता है. अगर वेट कंट्रोल कर लेते हैं तो उनका BP भी नॉर्मल हो जाता है. सो दीज आर फ्यू, सिर से लेके पैर तक, फैटी लिवर, गॉल स्टोन, फैट फर्टाइल फीमेल ऑफ 40 बोलते हैं, gynae problems, PCOD. There are so many lifestyle diseases, stroke, cataract, everything included. अगर हम देखें, we can prevent these अगर हम इसको सही से कर सकें. So just to give you a few statistics कि 38.2 million deaths have been linked to overweight in 2019, and 17.6% women on 18.9% men have been seen to be overweight. And these are the lifestyle diseases which जो overweight obesity से related है. और इंडिया में जो राइजिंग इशू है आजकल, इतना कंसर्न क्यों है कि नंबर 3 आती है इंडिया. और आज की डेट में वी नीड अ होलिस्टिक एंड प्रोफेशनल अप्रोच फॉर वेट मैनेजमेंट. क्योंकि हम जब भी किसी पेशेंट को बोलते हैं जाओ वेट कम करो, वो कुछ भी गूगल खोलते हैं और कोई डाइट प्लान निकालते हैं या जिम जाना शुरू कर देते हैं या कुछ भी फॉलो करते हैं. दे डोंट हैव अ प्रॉपर प्रोग्राम. So we do need to have some holistic professional approach, and it has been increasing. और सबसे अलार्मिंग बात है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ती जा रही है. लेस देन 5 years उसके भी पैरामीटर्स होते हैं. 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर ओवरवेट है, या ओवर 5 में 1 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज्यादा है तो वो ओवरवेट माना जाता है. और WHO is doing a lot of work in obesity, and उनका एक प्रोग्राम है जिसमें they are trying कि by 2030 उन्होंने 1/3 obesity reduce करनी है, because that is the cause of so many diseases. So this I've already shared with you because it's a global program. And now let's talk about the causes. Obesity होती क्यों है? Excessive food intake, yes. हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा हो गया है कि हम हर चीज रिमोट से काम करते हैं. जेनेटिक है, जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. हम देखते हैं कि अगर पेरेंट्स ओबीस हैं तो बच्चे भी ओबीस निकलते हैं. कुछ तो उनकी एनवायरमेंटल, उनका खाना पीना भी होता है, और कुछ जीन्स भी होते हैं. There are certain medications, for example, antidepressants है, इंसुलिन है, या कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, एंटीकन्वल्सेंट्स जो दिए जाते हैं, उनसे भी ओवरवेट देखा जाता है. Certain diseases like thyroid. अगर स्लीप का बहुत मेजर रोल है ओवरवेट. जब भी हमारी स्लीप खराब होती है, 2 हार्मोन्स होते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन, जो कि डिस्टर्ब हो जाते हैं. लेप्टिन जो है
हंगर कम करता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस लाता है, और ग्रेलिन एक हार्मोन है जो हंगर बढ़ाता है, राइट। सो डायबिटीज, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, और एक थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस है कि हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके जीन्स ऐसे हैं, उनको हमेशा फैमिन रहता था पहले, स्टार्वेशन रहती थी, तो उनकी आदत है कि जब भी कुछ अच्छा खाना मिलता है तो फैट स्टोर करने लग जाती है बॉडी। सो थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस यही है। और बहुत सारे हमारी जेनेटिक चेंजेस की वजह से भी, स्पेशली इंडियंस, अगर हम इंडियन खाना खाते हैं तो वेट ठीक रहता है, बट अगर हम स्विच ओवर करते हैं टू वेस्टर्न फूड या जंक फूड तो उनके वेट ओवरवेट होने के चांसेस और डायबिटीज होने के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन गट बैक्टीरिया हैज प्लेज अ मेजर रोल। अगर हम चाइल्डहुड ओबेसिटी की अभी बात ही कर रहे थे कि अगर किसी भी इन्फेंट को फर्स्ट 6 मंथ्स में ज्यादा एंटीबायोटिक जो लेता है उसको बाद में ओबेसिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ पर्सनालिटीज होती हैं, कुछ साइकेट्रिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से दिस इज अ कॉमन कॉज। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें कि क्यों होता है, वन इज कि हम जो खा रहे हैं और जो हमारा हम निकाल रहे हैं उसमें बैलेंस नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दैट इज वन। एंड सेकेंड इज हमारा बॉडी में हाइपोथैलेमस नाम की एक चीज होती है जो वी ऑल नो, तो उसका बैलेंस खराब हो जाता है और बॉडी वेट वो सेट हो जाता है हायर लिमिट पे। तो रीसेटिंग ऑफ द बॉडी वेट अगेन इज वन रीजन दैट यू टेंड टू गेन वेट। Then, of course, as I spoke about leptin and ghrelin, and melanin is another hormone जो कि weight को कम करने में काम करता है। Then we come to the cell कि normally अगर सेल में क्यों फैट डिपॉजिट होता है, जैसे हमारी बॉडी इज मेड ऑफ टिश्यूज एंड हॉर्मोन्स, then what happens कि जब सेल वॉल थिकन हो जाती है, the nutrition cannot go in and the toxins cannot come out. And when the toxins अंदर रहती हैं, that those toxins are getting converted into fatty cells. So that is causing a lot of fatty cell formation, especially in the liver. और because liver fatty हो रहा है तो fat metabolism भी सही नहीं होता, and because of that overweight result कर। And weight के बारे में, अगर fat के बारे में बात करें, now let's talk about little about management। जब भी हम किसी पेशेंट से बात करते हैं कि वेट कम करने की, तो these are few modalities that people go around कि डाइटिशियन के पास चले गए या इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए चले गए या कोई शेक ले लिया या कोई स्मूदी ले ली या कोई मूसली ले लिया। नो, दे हैव सो मेनी प्रोग्राम्स, पीपल आर थरली कंफ्यूज्ड कि हम करें तो क्या करें, वेट कम करना है, बिकॉज दे आर सीइंग सो मेनी थिंग्स ऑल अराउंड देम। And now there is a program that you can follow once अगर किसी को अच्छे से समझ में आ जाए कि the reason क्यों हो रहा है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बिकॉज वेट के बारे में जब भी हम सोचते हैं, वी थिंक कि हम खाना ठीक खा लें और हम एक्सरसाइज ठीक कर लें तो हमारा वेट ठीक हो जाएगा। बट देयर आर 6 थिंग्स which are affecting your weight. It is not just exercise and diet, it is your habit, meals habit also, your sleep. आप सब कुछ ठीक कर रहे हो बट आपका नींद सही नहीं है, उसमें भी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा which tends to फैट एक्यूमुलेशन, ओवरवेट होने के चांसेस हैं। अब स्ट्रेस रहता है, कुछ लोगों को स्ट्रेस रहता है तो ओवर ईटिंग करते हैं या नाइट बिंजिंग करते हैं, तो वो भी कारण है, बिकॉज उसमें कॉर्टिसोल भी रिलीज होता है, ग्रेलिन भी रिलीज होता है, और उसकी वजह से अगेन ओवर ईटिंग भी होती है और बॉडी डिपॉजिट करती है फैट। देन मील हैबिट्स, अगर हम मील में बहुत ज्यादा गैप डाल देते हैं, अब खाते कम है लेकिन अगर हमने ब्रेकफास्ट लंच में या स्किप करा ब्रेकफास्ट या डिनर स्किप किया या मील्स में गैप हो गया, व्हाट हैपेंस इज जब भी गैप होता है, काफी देर हम खाली पेट रहते हैं तो इंसुलिन रिलीज होती है, और जब इंसुलिन रिलीज होती है तो उसका काम क्या है, फैट डिपॉजिट करना। और अगर हम रेगुलर हर 2 आवर्ली इंटरवल पे कोई कुछ खाता है तो ग्लाइकोजन रिलीज होता है, राइट, सॉरी ग्लूकोगॉन रिलीज होता है, एंड ग्लूकोगॉन का काम क्या होता है, ग्लाइकोजन को वो करना। दैट मीन्स ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है उसको यूज होती है फॉर एनर्जी पर्पस। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जब कभी हम पेशेंट से किसी से बात करें तो मील हैबिट्स के बारे में बताना, और स्लीप अगर सही नहीं है तो स्लीप को सही रखना
या टिप्स देना फॉर अ गुड स्लीप, माइंडसेट सही रखना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड शुगर अगेन आई वुड से इज द कल्प्रिट, क्योंकि सिंपल शुगर्स जितना भी आज की डेट में अगर हम देखें एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में 250 to 500 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं चाहिए बॉडी में, लेकिन हम अगर कैलकुलेट करें सुबह से रात तक तो हमारी 500, 1000, 1500 शुगर जाती है. व्हाट हैपेंस टू द एक्सेस शुगर? वो एक्सेस शुगर हमारी कन्वर्ट हो जाती है फैट, वो कहीं और नहीं जाती. सो दैट इज व्हाई एक्सेस शुगर, आप फैट ज्यादा नहीं ले रहे लेकिन फिर भी एक्सेस शुगर से भी फैट बढ़ता जा रहा है. फैट इज नॉट सो मच ऑफ अ कल्प्रिट जितना कि शुगर से. And of course, there are certain vitamins which really help in weight loss. One is vitamin D. अगर आप अच्छे डाइट खाने थे और डाइट में हाई प्रोटीन डाइट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. अदर मोडालिटीज जो देखने में आती है, वन इज मेडिकेशन, कुछ दवाइयां भी होती हैं, और पेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में भी हम समझते हैं. अब इसको अगर हम एक प्रोग्राम में डालें, सो व्हाट आई डू विद माय पेशेंट्स कि आप 5M के ऊपर फोकस करें. वन इज मील्स एंड हाइड्रेशन. मील्स मीन्स कि आप हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो कार्ब्स एंड लो फैट डाइट लें. और हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर रहे. एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर हर रोज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी 20 kg पे आप 1 लीटर लगा लीजिए, राइट. if 40 kg वेट है तो 2 लीटर्स, अगर 60 kg वेट है तो 3 लीटर्स. माइंडसेट, द सेकंड एम इज द माइंडसेट. अगर आपका माइंड सेट सही है तो आपका कॉर्टिसोल स्ट्रेस आप मैनेज कर सकते हो. व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स की स्ट्रेस तो रहेगा जब तक हम लाइफ जिंदा है, स्ट्रेस रहेगा, बट वी शुड बी एबल टू मैनेज दैट स्ट्रेस. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो माइंडसेट का बहुत मेजर रोल है. एंड व्हेनेवर यू आर इन अ गोइंग फॉर एनी वेट लॉस प्रोग्राम, आपको एक मेंटर चाहिए. सबको मालूम है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, बट देयर शुड बी समबडी, देयर शुड बी अकाउंटेबल टू. कोई फ्रेंड पकड़ लें या डॉक्टर पकड़ लें जिसको वो रोज अकाउंटेबल रहे कि उन्होंने क्या आज खाया क्या नहीं खाया. मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेट मैनेजमेंट. मूवमेंट, राइट. मूवमेंट कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10,000 स्टेप्स अगर रोज कोई ले लेता है बहुत बहुत इफेक्टिव रहता है. अगर मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट 5,000 स्टेप्स हो जाए और पूरे दिन भर में हम 5,000 स्टेप्स और ले लें, दैट इज गुड इनफ एक्सरसाइज फॉर एनीबडी, राइट. The fifth M is metabolism. Fat metabolism कब होगा? As I said, अगर आपके meals में every 1.5 to 2 hours का gap, small frequent meals being taken every 60 to 90 minutes will cause glycogenolysis. Glucagon release होगा, glycogenolysis होगा, जिससे कि metabolism और ज्यादा बढ़ जाएगा. Everybody उनको पर्सनल एक बार सही से बात करते हैं. और थोड़ा सा हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो किसी जमाने में मोटापे को एक साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी माना जाता था, लेकिन आज की डेट में नहीं है. आज की डेट में इट इज नॉट अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी. जो मोटा है उसको उसका मजाक ही होता है. इट वाज इन 1997 जब WHO ने ओबेसिटी को एक ग्लोबल एपिडेमिक का नाम दिया. और हिस्ट्री तो गवाह है कि अगर हम देखें, अगर हम अपने पुराने उसमें भी देखें तो हिपोक्रेटिस ने भी ये बोला है कि जो कॉर्पस है, अगर बॉडी में फैट इज नॉट अ डिजीज बट इट इज द हार्बिंगर ऑफ डिजीज, राइट. तो इवन हमारी जो सुश्रुता है उसमें भी मेंशन है कि ओवरवेट से बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रखी है. चाइल्डहुड ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग. आप देखते ही हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बच्चे होते हैं, वो कहते हैं जी, पेरेंट्स कहते हैं ये जब तक कोक नहीं मिल जाता इसको ये खाना नहीं खाता है. So it is increasing incidence and that is what needs to be taken care of. और as I already mentioned कि antibiotics अगर बहुत सारे medication first year of life में मिलते हैं तो उसको chances of obesity बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है. So this should be again handled effectively. और जो diet को सही रखना, mindset को सही रखना, lifestyle को modify करना, exercise की importance बताना, ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में पेरेंट्स को बताना, और थोड़ा सा एज डॉक्टर्स
आई नो डॉक्टर्स के पास टाइम कम रहता है पेशेंट्स के लिए, लेकिन अगर 5 मिनट्स अगर वो थोड़ा सा उनको इसके बारे में भी बताएं, so that will be really help in preventing so many lifestyle diseases you cannot imagine. So with that, I'd like to end the session, and if you have any questions, I'm definitely here. And thank you so much for having me here. Thank you so Thank you much. so much, ma'am, for such a wonderful session. Now, I would like to invite questions from our learners. If you have any, please write down in the chat box, or you may raise your hand to directly ask from her. Kalpana ma'am, are there any questions in the chat box? Yeah, somebody has Dr. asked about intermittent fasting, and Yes. see, it is very common intermittent fasting और fasting बहुत आजकल popular हो रही है, but that is not a very healthy way of weight loss. अगर कोई, जैसे कई लोग होते हैं कि अभी 2 महीने में वेट कम करना है, बट वो उनको उसको फॉलो करते हैं, बट दैट इज नॉट अ हेल्दी, नॉट अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ लूजिंग वेट. The best way is small frequent meals. Anything else? I don't think so, ma'am. Okay, one more is here. Can you enlighten us on should we take light walk after meals or not? You can take that, but the best time to go for a walk is in the morning before breakfast, at least 5,000 steps for 40 minutes. अगर steps देखें तो 40 minutes में आपके 5,000 cover हो जाते हैं. Rest of the day you can do that, but always go for a walk before meals, not after meals. Because उससे Okay. पहले what will happen, आपका metabolic rate जब बढ़ जाएगा, when you take your food, वो easily digest हो जाएगा. Thank you so much, ma'am. Any more questions, anybody? You may write it in the chat box, or you may simply raise your hand. हेलो. Yes. Yes, sir. मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर वंदना से. Sure, sir. कि ये सीनियर सिटीजन्स में 50+ की एज में यदि हम बिल्कुल मतलब नॉर्मल हैं, वेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी भी नहीं है, तो हमें घी खाने से, देसी घी, क्या मतलब फायदेमंद है या नहीं खाना चाहिए, या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या कम खाना चाहिए? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका. देखिए, घी जो ऑयल्स होते हैं, अगर हम फैट की बात करें तो फैट इज 2 तरह के फैट होते हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स. तो अगर हम बात करते हैं रिफाइंड ऑयल की, तो रिफाइंड ऑयल इज नॉट अ गुड फैट, राइट. घी, यस, देसी घी आप खा सकते हैं, और ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं, सरसों का ऑयल आप ले सकते हैं. तो मिक्स एक लेना चाहिए, और आप इवन आफ्टर 50 आप बिल्कुल आप देसी घी ले सकते हैं. थैंक यू. आई एम 60+, मैं लेती हूँ. थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you. Thank you. Any more questions? I don't think there are any more questions. I would request our patron, Dr. VP Singh sir, to please unmute himself and share his views on today's session. Thank you so much, everyone. थैंक यू डॉक्टर पार्टी साहब. एक्चुअली आज का जो लेक्चर आपका रहा है ओबेसिटी पर, ये बड़ा बर्निंग पॉइंट रहा है. एक्चुअली जनरल प्रैक्टिस में हम देखते हैं बहुत फेस करना पड़ता है, और मैक्सिमम पेशेंट का यही हमसे सवाल होता है कि डॉक्टर साहब कितने दिन में मेरा वेट कम हो जाएगा. आपने अभी बताया कि मैरिज बेस से बहुत सी लड़कियां कहती हैं कि बहुत जल्दी मेरा वेट कम होना चाहिए. कुछ मेडिसिनल इसमें एड काम करती हैं कुछ? डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो काम करती हैं जो वेट लॉस के लिए? जी, अगर किसी को इंस्टेंट वेट लूज करना है, जैसे कई लोग बहुत ग्रॉसली ओबीस होते हैं,
बहुत ज्यादा 40 किलो ज्यादा है, तो उनको इनिशियली मेडिसिन हम दे सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, फैट ब्लॉकर्स होते हैं। बट अगर वो नॉर्मल अपना थोड़ा टाइम लगाएं और हेल्दी तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, तो डेफिनेटली वो आई वुड सजेस्ट दैट बेटर। बट अगर फिर भी जल्दी करना है तो मेडिसिन, फैट ब्लॉकर्स होते हैं, कार्ब ब्लॉकर्स होते हैं। सर बैरिएट्रिक जो सर्जरी ओबेसिटी में जो करते हैं, इसमें जी कोई बाद में कोई नुकसान होता है क्या, जैसे अनमैरिड गर्ल्स के लिए जो करते हैं? जी जी, नुकसान तो नहीं होता है। एक तो सर्जरी का अपना रिस्क वैसे भी रहता है, और सेकेंडली सर्जरी के बाद भी जो एडवाइस किया जाता है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। ये नहीं कि एक बार जी। सर्जरी हो गई तो वो फिर रिगेन कर जाते हैं, लेकिन अच्छा। अगर वो उनको अपना लाइफस्टाइल, उसके बाद भी एक लाइफस्टाइल काउंसलर उनको मिलता है कि आप जी आप लाइफस्टाइल अपना ऐसे ऐसे चेंज कीजिए। तो अगर वो पहले ही चेंज कर ले तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत लेकिन नहीं अगर पड़ती। करवा थैंक यू। लिए उसके बाद भी वो चले। जी बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I request our President, Dr. Shweta Singh, to please share her views. Thank you, Dr. Sakshi. But before I speak something, I would like to ask Dr. Deepak, our General Secretary, to say a few words or share his views on obesity. थैंक यू मैम। मैम नमस्कार। डॉक्टर वंदना, थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल लेक्चर के लिए। देखिए, जो ओबेसिटी है एक बहुत ही मेजर और बर्निंग टॉपिक है, जैसा डॉक्टर विजय सर ने भी बोला। जो मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है उसमें मैंने हमेशा ये देखा है कि जो ओबेसिटी है और जो डायबिटीज है, इन दोनों के जो पेशेंट है वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ये खा करके ठीक हो जाऊंगा। मतलब जैसे कुछ लोग आते हैं कि हमने मेथी लेनी शुरू कर दी, हमने धनिया लेना शुरू कर दिया, हमने कोई दवाई लेनी शुरू कर दी, हमने कुछ और खाया जिसकी वजह से उसको वेट लॉस हो गया। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर हम कुछ भी नहीं खाएंगे तो वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, और एक परफेक्ट जो डाइट है वो लेंगे तो हम जल्दी मैनेज कर लेंगे। क्योंकि जो वेट इंक्रीज हुआ है वो डाइट को लेकर के ही हुआ है। मतलब मैक्सिमम टाइम कुछ ही डिजीज को छोड़ करके जहां पर वेट इंक्रीज होता है उसमें सबसे मेजर फैक्टर जो है वो डाइट का आता है। अब डाइट के बारे में एक और बड़ा इशू है, क्योंकि ओबेसिटी एक लगातार ऐसी चीज है जो बढ़ती चली जा रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो डाइट परफेक्टली डाइट लेने के बावजूद भी अपनी ओबेसिटी को रोक नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसे पेशेंट भी हैं जो मेडिसिन भी ले रहे हैं, डाइट भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो वेट है जैसे 115 kg है और उनका 90 kg पे आकर के स्टक हो गया, उससे ज्यादा वो वेट रिड्यूस नहीं कर पा रहे। उन लोगों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उसका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब बॉडी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडेक्स होता है जिसकी वजह से उसका एक वेट होना जरूरी है। अगर उससे डाउन जाएंगे तो बीमारियां भी पैदा होंगी। डाइट को लेकर के एक सबसे मेजर फैक्टर ये है कि जब से हम मतलब हमारे इंडिया में आप लोग देखेंगे कि जो लोग भी ऐसे हैं जो 66 से पहले के बॉर्न हैं, वो लोग हमेशा एक लंबी लाइफ जिए हैं। मतलब 90 100 ईयर्स ऐसे। और जो 66 के बाद 1966 के बाद के लोग हैं उनकी जो एवरेज लाइफ है वो अब 70s के आसपास की आकर के रह गई है। इसका जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है हमारे देश में एक हरित क्रांति का आना, जो 1966 में आई थी, जहां से गेहूं की ब्रीडिंग शुरू हुई, जहां से फर्टिलाइजर्स का यूज होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से कुछ केमिकल्स ऐसे आए जो हमारी बॉडी को ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहे हैं। अब शायद गवर्नमेंट को कुछ बात समझ में आई है और अब उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया है। आपने देखा होगा कि पंजाब के कुछ ऐसे एरिया हैं या असम के कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर ऑलरेडी कैंसर का एक जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत हुआ। तो हुआ क्या कि जिस समय ये हुआ, जैसे हमारे देश में गेहूं की बात करें, तो गेहूं जो हमारे देश में आया वो लगभग 1862 के आसपास हमारे पास गेहूं इंट्रोड्यूस हुआ और सबसे पहले मध्य प्रदेश में आया। इससे पहले हमारे इंडिया में जब भी कुछ खाया जाता था वो मोटा अनाज के तौर पे खाया जाता था। जो गेहूं था उस समय बहुत बढ़िया था, लेकिन 66 के बाद उस गेहूं की एक नई ब्रीड आई और वो लगातार एक नई ब्रीडिंग होती चली गई, जिसकी वजह से गेहूं जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाता चला गया। और जिन पौधों को या जिन पेड़ों को वो फर्टिलाइजर मिला, उस फर्टिलाइजर को खा करके जिन एनिमल्स ने मिल्क को दिया वो भी खराब हो गई। तो जो मिल्क है और जो वीट है वो आज की डेट में सबसे ज्यादा इसलिए ओबेसिटी का कॉज माना जाता है, जितना मतलब मैं जानता हूँ। और मैं हमेशा ओबेसिटी पे जब भी काम करता हूँ तो इन दोनों की डाइट को जो है लेने के लिए मना करता हूँ। और ये मतलब एक छोटा सा इनपुट था मेरी तरफ से। तो हमें इस चीज पे भी काम करना पड़ेगा कि हम डाइट तो अच्छी लें, लेकिन उसको लेना क्या है और किस तरीके से लेना है, ये सबसे मेजर फैक्टर है ओबेसिटी को ठीक करने के लिए।
तो थैंक यू डॉक्टर श्वेता मैम, एंड थैंक यू डॉक्टर वीपी सिंह सर, डॉक्टर वाई सिंह सर एंड डॉक्टर वंदना मैम। थैंक यू, आपने इतने अच्छे से बहुत शॉर्ट टाइम में सब कुछ अच्छे से समझा दिया। थैंक यू सो मच। चलो, ये इसी में मेरा एक डॉक्टर दीपक से ही सवाल है कि जैसे बताया कि वीट में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बहुत होता है, तो जी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज तो सब में होता है, जी मिलेट्स में भी होता बिल्कुल। है, जितने भी मोटे अनाज नहीं है नहीं, उनमें भी सभी में होता है। सर, इवन सिर्फ अभी मैंने एक वीट का एग्जांपल दिया जिसमें सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशंस हुए। मतलब जब पहले वीट होता था और आज का वीट जो हो रहा है, उसमें सिर्फ आप वीट खा रहे हो, जो वीट की क्वालिटी है वो नहीं खा रहे हैं। ऐसा सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसलिए मैंने आपको पहले ही, वो बताया कि ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाते चले जा रहे हैं। इवन आप एक चिप्स का जो पैकेट है, अगर आप उसको भी ओपन करेंगे तो उसमें भी वो केमिकल है जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाएगा। आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, उसमें भी ऐसा कुछ है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाएगा। ये मजबूरी हो जाएगी कि बॉडी ओबिसिटी की तरफ जाएगी ही। इसीलिए इंडिया जो है वो हब बनता जा रहा है ओबिसिटी का और डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वीट में ही है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप देखेंगे कि जो हमारी G20 समिट चल रही है, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मिलेट्स को लेकर के सबसे आगे आए हैं। क्योंकि उनको पता है, उन्होंने भी कहा है कि जो वीट का यूज है वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा, अगर हमारी हिस्ट्री देखी जाए इंडिया के अंदर, तो वो गेहूं जो है वो बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं था। लेकिन 1862 के आसपास अंग्रेजों के टाइम पे ही ये वीट यहाँ तक आया, और सबसे पहले मध्य प्रदेश में आया। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि एमपी का गेहूं बहुत बढ़िया है। तो वो इसलिए बढ़िया क्योंकि सबसे पहले वहीं पे आया था। लेकिन उसका जो मॉडिफिकेशन हुआ हिंदुस्तान के अंदर, वो 1966 में जब हरित क्रांति आई, जब हमारे पास कुछ बचा नहीं था, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो हमारा कृषि उद्योग है वही सबसे मेजर फैक्टर है, तो उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए एक गेहूं का एक नया बीज लेकर के आए, और उसी के बाद फर्टिलाइजर्स का यूज होना शुरू हुआ। आप कोई भी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए कि जो भी उससे पहले के लोग हैं, उनके जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया है, उनकी डाइजेशन कैपेसिटी बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं कि 66 एक फिक्स कर दिया, 2-4 साल बाद जब तक उनके पास वो फर्टिलाइजर नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे जैसे ये फर्टिलाइजर हमारे या केमिकल्स हमारी बॉडी में आते जा रहे हैं, हमें बहुत नुकसान होता जा रहा है। इस बात को अभी हमें समझने में शायद और 10 साल लग जाएंगे। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने इस पे ऑलरेडी काम शुरू किया है, और अपनी ओबेसिटी को, अपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को, डायबिटीज को रोकने की कोशिश करी है, और उसमें कामयाब भी हुए हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ पे अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, तो जितनी भी ऐसी चीजें जो अच्छी डाइट की है, तो जैसे आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो बहुत हेल्दी है हमारे लिए, चना है वो बहुत महंगा है, बर्गर उससे सस्ता है। तो ऐसा कुछ कंट्रियों ने ऐसे भी प्रोटोकॉल्स लाए कि जो भी चीज हमारी ओबेसिटी को बढ़ा रही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को बढ़ा रही है, उन सबको बहुत कॉस्टली किया, और जो अच्छी हेल्दी चीज है उनको खाने के लिए सस्ता किया। हमारे देश में भी इसका उल्टा है। अगर आप मूंग की दाल लेने जाएंगे तो हो सकता है बहुत महंगी मिले। आप कुछ अच्छा सा कोई चिप्स लेने जाएं, कोल्ड ड्रिंक लेने जाएं, तो ये आपको हो सकता है सस्ती मिल जाए, ज्यादा भी मिल जाए। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें निभाने पड़ेंगे। सेम एज इन मिल्क। मिल्क हमारे यहाँ बेकार नहीं था, मिल्क बहुत अच्छी चीज थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन आज इंसुलिन रेजिस्टेंस होता जा रहा है, क्योंकि जिन जानवरों का दूध हम पी रहे हैं, वो जानवर भी उन्हीं फर्टिलाइजर्स के पौधों को खा रहे हैं। इसलिए ऐसे अब वो मानने लगे हैं कि ऑर्गेनिक खेती होने लगी है। ऑर्गेनिक जो एनिमल्स हैं उनकी जो खाद है वो ऑर्गेनिक आने लगी है। उनके दूध थोड़े अच्छे हो सकते हैं, वो हेल्दी हो सकते हैं। लेकिन जो बाकी दूध है वो तो खराब नहीं है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी स्टडीज हैं कुछ ओबेसिटी के बारे में। डॉक्टर वंदना मैम, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर अशोक मदान सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। Dr. Ashok, you can proceed with your question, please. Yes, thank you. Good evening to all. Namaskar. I'll try to speak in Hindi to ask. हम जो हमारी लेडी डॉक्टर हैं वो बता रही थी, एक पेशेंट है, एग्जांपल देता हूँ कि हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हर वक्त बदलना चाहिए, ये होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पेशेंट है अबाउट 40 years, उसका वेट अंदाजन उसकी हाइट के मुताबिक बहुत ज्यादा है, यानी 80 to 85। कुछ रेमेडीज दी गई, लेकिन लाइफस्टाइल बदलने के लिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है कि शाम को जब वो काम पे सुबह 6 बजे घर से निकलना और शाम को 7 बजे घर पहुंचना, ट्रैवल करते हुए, सर्टेनली स्ट्रेस तो है, लेकिन आना, रैपिडली खाना, और स्पेशली 2 pieces of the cream cake, you know, as we have
she is in habit and she cannot do not to resist at all to eat it. तो हम कैसे उनको समझाएं? दवाई तो ठीक है हम दे देंगे, लेकिन दवाई के अलावा पेशेंट की कोलैबोरेशन के बिना हम इतनी ओबेसिटी को कैसे बेहतर कर सकेंगे जब तक पेशेंट कोलैबोरेट नहीं करता। कुछ ऐसे व्यूज होंगे डॉक्टर के जो हम अपनी पेशेंट को बता सकें। कुछ भी किया लेकिन इट्स रादर डिफिकल्ट। प्लीज कुछ जी डॉक्टर अशोक, थोड़ा सा आपका आवाज कट रहा था, बट आई गेट योर क्वेश्चन कि पेशेंट्स की जो कंप्लायंस है, पेशेंट करना चाहते हैं वेट लॉस, बट उसके लिए जो जरूरी एक्टिविटीज है वो करने को तैयार नहीं है तो दिस इज वेरी ट्रू। बट सबसे पहले हमको उनके अंदर एक डिजायर जगानी पड़ेगी टू लूज वेट। अगर बंदे में डिजायर हो जाए कुछ करने की, फिर उसको कोई भी आप उससे काम करा सकते हैं, आप उससे कुछ भी फॉलो करा सकते हैं, कोई भी हैबिट भी चेंज करा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट लगाने पड़ेंगे उसका रीजन जानने के लिए। दिस इज व्हाट आई डू। अगर पेशेंट बैठा है और उससे मैं पूछूं कि आप ये बताइए कि आप वेट क्यों लूज करना चाहते हैं, तो उसको 10 मिनट 15 मिनट उसको बोलने दीजिए वो क्यों लूज करना चाहते हैं। तो उसका जो रीजन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए, देन यू प्रोवाइड योर लाइफस्टाइल चेंजेस एज अ सॉल्यूशन जो आप करना चाह रहे हैं। जब आप उसको बहुत डिजायर उसकी स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो रेडी होते हैं फॉलो करने के लिए। और उसको बहुत डीप तक उसको लेके जाना पड़ता है पेशेंट को कि वो क्यों। अच्छा मैं अगर एग्जांपल दूं कि हाँ पेट कम करना चाहते हैं ताकि अच्छा लगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आस्क हिम 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस, जब तक वो अंदर से आपको पता चल जाएगा कि अब दिस इज द टाइम, नाउ आई टेल हिम कि आप ये तो करेगा, ये करेगी, तो वो फॉलो करेगा। सो any human being, if the desire is strong, they will do anything for that. So you have to make the desire strong. Maybe तो अच्छा होने के लिए, maybe healthy होने के लिए। क्यों healthy होना है, बीमारी ठीक करने क्यों होनी है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। So you have to probe the patient. This will take 10-15 minutes, but once that is done, then फिर आपका काम आसान है। So that is my message. Thank you very much. I will try my best to do it because she was very recommended lady from one of my doctor that I was wanting that she will lose the weight because it's really too much. Anyway, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लाइफस्टाइल को अंदाजा रखते हुए मेडिसिन को डायरेक्टली और आपके जो दिए हुए कुछ पॉइंट्स हैं, आई विल डू दैट। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग। Thanks, sir. Vandana ma'am, we have a few more questions. Yeah. If you allow, I can read them to you. Yeah, please. We have one question, ma'am, though it is a bit diverted from the topic, but it is like if a person is having normal cholesterol levels, but having a lipoma, and how to deal with that? See, lipoma is just a collection of fat cells and it is encapsulated. So there is no medicine for lipoma and there is nothing that will cure of it except for surgery. Lipoma has no answer as for medicine or lifestyle or diet. Thank you, ma'am. There's one more question. It's about the cold exposure therapy which is used for weight loss. So can you please enlighten us about that? What is it? Yeah, cold exposure therapy, it's a short-term treatment. It will not help in the metabolic rate. It's more of a gimmick, I would say. जो instant थोड़ा सा benefit दिखाती है, but long term it is not so effective. उसका कोई scientific इतना basis नहीं. Okay. Thank you so much, ma'am. Now again, I request our President, Dr. Shweta, to please present her views about this session. Thank you, Dr. Sakshi. And
For me, this session was very short and crisp and very enlightening, ma'am. Thank you so much for such an insightful session. And we would like to take the privilege to honor you with the appreciation certificate. So please accept it from DHMA. I would like to share. Congratulations. And we thank you for your gracious presence and for your precious time in sharing your knowledge and wisdom. Thank you so much. Thank you. It's my pleasure entirely. Thank Over you to so you, much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Now I would request again our president to please give away vote of thanks. First of all, I would like to thank our speaker of the day of this evening, and for such an enlightening and interesting session, and for the very interesting tips she has given on obesity and for weight management. I want to thank my entire executive team for their selfless services in favor of DHMA and homeopathy, and not the least, all the viewers who have joined us today. And I would like to request if the viewers have any suggestions for the betterment of DHMA or for betterment of any, they would like to ask for any specific sessions, so they can reach us or they can reach our executive team for those things. Thank you all for joining us. Thank you so much, ma'am. Before concluding, I would like to remind everyone that who are still not the members of DHMA and would like to become one, please write to us at dhmadelhi@gmail.com, or you may visit our website www.dhma.in. You can easily find an option there to register yourself and become an integral part of this family. Please stay connected with us for more such informative sessions. Thank you so much for joining us today. Thank you all. Good night.